قبضے میں لی گئی غیر قانونی اور ناقابل فروخت ادویات رشوت کے عوض ڈھونڈنے کا انکشاف۔ چیف ڈرگ انسپکٹر نے سیکرٹری صحت کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ خط کے مطابق ڈرگ انسپکٹر جنوبی غلام علی لاکھو نے ملزمان پر ڈرگ کورٹ میں مقدمات بنانے کے لیے کوالٹی کنٹرول بورڈ میں کیس نہیں بھیجے۔ قبضے میں لی گئی غیر قانونی اور ناقابل فروخت ادویات رشوت کے عوض چھوڑنے کا انکشاف ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے، میر کیریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، یہ ڈرگ انسپکٹر کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ جی بالکل، یہ کراچی کے ضلع جنوبی میں غیر قانونی زائد المعیار غیر رجسٹرڈ اور ناقابل فروخت ادویات قبضے میں لے کر مبینہ رشوت کی چھوڑنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈرگ انسپکٹر جنوبی غلام علی لاکھو نے ملزمان پر ڈرگ کورٹ میں مقدمہ بنانے کے لیے کوالٹی کنٹرول بورڈ میں کیس نہیں بھیج دیے۔ چیف ڈرگ انسپکٹر عبدالحفیظ نے سیکرٹری صحت کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا۔ اس کو تحریر میں لکھا گیا، خط میں لکھا گیا کہ گزشتہ سال غیر رجسٹرڈ ڈسپوزیبل سروس کو قبضے میں لینے کی کیس کو رپورٹ نہیں کیا گیا۔ مشتبہ ناقابل فروخت سرکاری کے پل جس کے پیکٹ کو اسکریچ کیا گیا تھا، اس کو قبضے میں لینے کی کیس کو رپورٹ نہیں کیا گیا۔ دیکھو حال کے گراؤنڈ اسٹور پر قائم دکان نمبر میڈیکو سے زائد المیعاد اور تبدیل کی گئی قیمت والی دینے کا کیس بھی جو ہے وہ رپورٹ نہیں کیا گیا تھا۔ حاجی دین محمد مینشن شاہی ولی اللہ روڈ کھڈا مارکیٹ میں قائم غیر لائسنس شدہ بسم اللہ میڈیکل اسٹور کو لاک اپ اور سیل کرنے کا بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ ڈرگ ایکٹ 1976 کے سیکشن 19 کے تحت ڈرگ کورٹ میں کیس دائر کرنے کے لیے صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ میں بھی یہ رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ اسی حوالے سے جو ہے محکمہ صحت نے ڈرگ انسپکٹر غلام علی لاکھو سے وضاحت طلب کر لی ہے، اور وضاحت میں یہ بتایا کہ غلام علی لاکھو 4 فروری 2020 سے اپریل 2024 تک ضلع جنوبی میں ڈرگ انسپکٹر تعینات رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کارروائی مکمل نہ ہو سکی۔ ایسے درجنوں کیسز سامنے آئے جو ڈرگ انسپکٹر نے رپورٹ کر کے ملزمان کو سزا دلوانے کے بجائے مبینہ طور پر رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ جی بہت شکریہ میر کیریو۔ چیف ڈرگ انسپکٹر سندھ عبدالحفیظ سنیو نے ڈرگ انسپکٹر ساؤ غلام علی سے چھاپہ مار کارروائیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ متعدد کارروائیوں کا ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر دونوں کے درمیان سرد جنگ ہوئی۔ چیف ڈرگ انسپکٹر نے سیکرٹری صحت سے شکایات کے لیے خط لکھ دیا۔ سیکرٹری صحت نے ڈرگ انسپکٹر کو شوکاز جاری کر کے رپورٹ طلب کر لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رند سے۔ ابراہیم بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل ڈرگ انسپکٹر ساؤتھ کی جانب سے متعدد کیسز جو ہیں وہ خفیہ رکھے گئے تھے مبینہ طور پر، جس کے اطلاع جو ہے وہ چیف ڈرگ انسپکٹر کو بھی پہنچی کہ یہ جو کیس رپورٹ کیوں نہیں ہوا، جس پر چیف ڈرگ انسپکٹر نے سیکرٹری صحت کو ڈرگ انسپکٹر ساؤتھ کے خلاف جو کارروائی کرنے کے حوالے سے اور جو بھی تحریری طور پر تھی، انہوں نے تحریری طور پر لکھ کر سیکرٹری صحت کو روانہ کی کہ 4 کیس جو نہیں بتائے گئے اس کی وجہ کیا تھی۔ تو اس حوالے سے چیف ڈرگ انسپکٹر عبدالحفیظ تنیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ چیف صاحب بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے کہ ڈرگ انسپکٹر ساؤتھ جو ہیں غلام علی لاکھو نے کچھ ایسے کیسز ہیں جو سامنے نہیں رکھے، کچھ ایسی ادویات تھیں، کوئی کیپسول تھے، کچھ اور جعلی میڈیسن تھی، وہ کیس پکڑے تو گئے لیکن ان کا کیس بنایا نہیں گیا، کیا وجوہات تھی ایسی؟ آپ کو تمام چیزوں سے علم میں رکھا گیا؟ جی، جتنے بھی ڈرگ انسپکٹرس ہیں پورے پروونس کے، وہ اگر کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں تو وہ کیس ریفر کرتے ہیں کوالٹی کنٹرول بورڈ کو، پھر کوالٹی کنٹرول بورڈ پرمیشن دیتا ہے فار پروسیکیوشن ان دا آنریبل ڈرگ کورٹ سندھ کراچی۔ تو جب ہمارے پاس منتھلی رپورٹس آتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ہمیں کبھی کبھار انفارمیشن بھی آ جاتی ہے کہیں سے کہ یہ کیسز جو ہے رپورٹ نہیں ہوئے۔ تو میں نے پھر ان کو ڈرگ انسپکٹر ساؤتھ کو جو ہے لکھا بھی تھا، پھر وہ انہوں نے جو ہے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے۔ تو میں نے پھر ظاہر ہے ہمارے کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی آنریبل سیکرٹری ہیلتھ ہیں، تو میں نے پھر سیکرٹری ہیلتھ صاحب کو جو ہے وہ رپورٹ بھیجی کہ یہ 4 کیسز جو ہے رپورٹ نہیں ہوئے، یہ میٹر ہے۔ چلا اطلاع ملی تھی کہ ان کیسز کو بھی سامنے آنے چاہیے، لیکن جب یہ سامنے کیس نہیں آئے تو انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ سندھ ریحان اقبال بلوچ کو جو وہ لیٹر لکھا تحریری طور پہ، جس کے بعد انہوں نے جو وہ شوکاز جاری کر دیا ہے غلام علی لاکھو کو جو ڈرگ انسپکٹر ہیں ساؤتھ کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا کارروائی ہوتی ہے، چند ہفتے کے دوران یہ سامنے آ جائے گی۔ اور ریلوے مسافروں کو خوشخبری، پاکستان ریلوے نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کر دی۔ کرائے کم کرنے کی مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ اقصیٰ شاہد سے۔ اقصیٰ بتائے گا کون سی کلاس میں کرایہ کم کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ریلوے مسافروں کے لیے اچھی خبر ہے۔ جو مستقل طور پر سفر کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ نے کرائے میں کمی کر دی ہے۔ کمی تمام مسافروں کے لیے تمام کلاسز کے
बोगियों में की गई है। एसी क्लास का टिकट जो है वो 100 से 150 रुपये तक की कमी की गई है, जबकि इकोनॉमिक क्लास के किरायों में 50 रुपये कमी की गई है। और कमी का इतलाक जो है वो 3 अगस्त से जो है वो लागू होगा, यानी कल के बाद जो परसों 3 अगस्त आएगी उसमें जो है वो तमाम किरायों में जो है वो कमी देखी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद। शहर कायद में बारिश के बाद सड़कों की सूरत हाल बदतर हो गई। शहर की बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शेरशाह रोड की भी सूरत हाल अबतर है। मजीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से, जो कुछ देर पहले शेरशाह रोड पर मौजूद थे। जुबैर बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, शहर कायद में आज सुबह सवेरे से ही बादल जो हैं बरस रहे थे और कराची के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश हमें देखने को नजर आई है। लेकिन बारिश का अभी तो फिलहाल सिलसिला थोड़ा सा थम सा गया है, थोड़ा रुक सा गया है, लेकिन बारिश जो है अपना असरात जो है अब पीछे छोड़ चुकी है। कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का जो पानी है वो खड़ा हो चुका है। इस वक्त मैं शेरशाह के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बरसाती पानी जो है हमें सड़कों पर नजर आता है और खस्ता हाल सड़कें हैं, डंपी रोड्स हैं। तो जब उस पर पानी जाता है उसके ऊपर से जब गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी जो है उनकी जो आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो मुतासिर हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ शेरशाह में मुकीम एक शहरी मौजूद है, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, पानी यहाँ पर जमा है, खस्ता हाल सड़कें हैं, गाड़ियाँ डूब रही हैं, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की समझ में आए तो एक मोटरसाइकिल है या गाड़ी है हमारी खराब हो जाती है, हम मैकेनिक के पास जाते हैं, उसको पैसे देते हैं। अगर वो सही नहीं चलती तो हम दोबारा मैकेनिक के पास जाते हैं, हमने आपको पैसे दिए थे, गाड़ी सही क्यों चली। आप इसलिए करते हैं कि पैसे हमारे जेब से जाते हैं और गाड़ी को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम्हारी जेब से ना पैसे जाते हैं ना तुम्हें वो जगह इस्तेमाल करनी है। तुमने कभी आके देखा भी कि जो सड़क के पैसे दिए तो टूटी क्यों? तुम्हें सड़क से गुजरना ही नहीं है और इतना भी सेंस नहीं है यार कि तुम सड़क बनाते हो, इतना भी दिमाग नहीं कि पानी आएगा तो जाएगा कहाँ। ये पानी यार, मैंने 35 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारा, यानी ऐसा कंट्री देखा नहीं कि पानी भरा तुम सड़क बनाते हो, सोचते नहीं हो कि कोई पानी का सिस्टम करो। कितने गड़े हैं, ये सब अजाब का जिम्मेदार कौन है? ठीक है जी, जिम्मेदार कौन है? जैसे कि इनका कहना था कि सड़कें बना दी जाती हैं लेकिन पानी का जो मतलब सड़कों पर अगर पानी जमा हो जाता है तो उसका कोई मुतबादिल रास्ता जो है वो पहले ही नहीं बनाया जाता है। जब बाद में जब सर पर पड़ती है तो हम सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उनका ये भी कहना था कि जो मिनिस्टर्स हैं या वुज़रा हैं या जो कह सकते हैं कि टाउन चेयरमैन हैं वो इन सड़कों से गुजरें, इन हालात से गुजरें तो उनको एहसास होता। हम अभी भी पानी यहाँ पर जारी है और पानी की निकासियात का काम यहाँ पर मुकम्मल नहीं किया गया है। जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको वो काफ़ी डैमेज भी हो रही है इस लिहाज से कि गड्ढे के ऊपर से जब गाड़ी गुजरती है तो वो आधी से ज़्यादा जो है पानी के अंदर डूब जाती है। ताहम शहरियों का ये भी कहना है कि इलाके की जो इंतज़ामिया है उसको फिलफौर काम करने की ज़रूरत है और पानी की निकासियात का काम जो है इसको मुकम्मल करने की भी ज़रूरत है। जी, शहर के नशेबी इलाकों की तरह शाह फैसल कॉलोनी सुपीरियर कॉलेज का रोड भी बारिश के पानी में डूब गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। सुबह सवेरे हुई बारिश के बाइस शाह फैसल टाउन की मरकजी इमारत के ऐन सामने सुपीरियर कॉलेज रोड पर पानी जमा हो गया। डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान बशीर बोले, नशेबी इलाके होने और शाह फैसल ब्रिज से पानी आने के बाइस ये सूरत हाल पैदा हुई। सफाई का अमल जारी है। ये बस एक तरह से नशेबी एरिया बना हुआ है इस वक्त और ब्रिज है, ब्रिज के नीचे का एरिया है और सबसे बड़ा मसला जो है ना सेवरेज का, जब से ये मली रिवर ब्रिज के नीचे जो है जो शाह फैसल और पूरे टाउन का पानी जाता है, जब से वहाँ पे ये एक्सप्रेस वे बनना शुरू हुआ है ना, जब से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। बारिश के पानी की नकासी पर मामूर अमले का कहना था कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतासिरा मुकाम का दौरा किया था। इनकी हिदायत पर डिवाटरिंग पंप और मैनुअल तरीके से पानी साफ किया जा रहा है। चेयरमैन साहब हमारे विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे आके देख के जा चुके हैं। डायरेक्टर साहब हमारे मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड के ऊपर, तमाम जगहों पे विजिट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है, हमारे तमाम स्टाफ मौजूद है रोड्स के ऊपर और 1 से 1.5 घंटे में हम काफ़ी हद तक अपने शाह फैसल के जो पॉइंट से क्लियर कर लेंगे। शाह फैसल टाउन इंतजामिया का कहना था कि पानी की जल्द अज जल्द निकासी के लिए तमाम इकदामात जारी हैं। कैमरामैन कय्यूम शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर को बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक अमला मकामी फॉल्स की दुरुस्तगी के लिए मुतहरिक है। इस पर तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा, क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से?
यहाँ पे आज देखा जाए दिन भर जो बरसात हुई है उसके बाद KLLT को तकरीबन 180 फीडर ट्रिप हुए थे और मजमूई तौर पर उसके बाद रिकवरी पे 100 फीडर रह गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो करंट अपडेट आई है कि शहर भर के जो बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक और KLLT का अमला मुकामी फॉल्ट की दुरुस्त करने के लिए वो बताया कि गुज़िश्ता घंटों में जो है बहाल होने वाले मुकामात में कोरंगी सेक्टर है, इसके अलावा जो है जमान टाउन है, शारा फैसल है, मंगोपीर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कस्बा कॉलोनी है, मेट्रोवेल है, अलियास गोट है, चश्मा गोट है और दीगर जो वहाँ पे जो इलाके थे जहाँ मुकामी फॉल्ट थे उनको भी दुरुस्त कर दिया गया है। और जिन मुकामात पे अगर बिजली नहीं है तो उन्होंने कहा है कि KLLT के जो सोशल मीडिया और KLLT शिकायती नंबर पर शिकायत दर्ज करें, वहाँ बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। लियारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखो की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी किए जाएं। SSP सिटी आरिफ अजीज ने DIG साउथ को खत लिख दिया। खत में इंतहाई मतलूब मुल्जिम वसीउल्लाह लाखो के खिलाफ तमाम सबूत भी मुंसलिक कर दिए। जी हाँ, लियारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखो की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी किए गए हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज ने DIG साउथ को खत लिख दिया। खत में इंतहाई मतलूब मुल्जिम वसीउल्लाह लाखो के खिलाफ तमाम सबूत भी मुंसलिक किए गए। लियारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखो की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी किए गए हैं। मुल्जिम दुबई और ईरान से बैठकर अपना ग्रुप ऑपरेट करता है। मुल्जिम ताजों को भत्ते के लिए फ़ोन करता है। तमाम फ़ोन बैरून मुल्क के नंबर से किए जाते हैं। मुल्जिम मुतादिद मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब है। दरख्वास्त है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट नोटिस जारी किया जाए। लियारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखो की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी किए जाएं। SSP सिटी आरिफ अजीज ने DIG साउथ को खत लिख दिया। लियारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखो की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी किए जाएं। SSP सिटी आरिफ अजीज ने DIG साउथ को खत लिख दिया। खत में इंतहाई मतलूब मुल्जिम वसीउल्लाह लाखो के खिलाफ तमाम सबूत भी मुंसलिक कर दिए गए हैं। खत में इंतहाई मतलूब मुल्जिम वसीउल्लाह लाखो के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। मुल्जिम दुबई और ईरान से बैठकर अपना ग्रुप ऑपरेट करता है। मुल्जिम ताजों को भत्ते के लिए फ़ोन करता है। तमाम फ़ोन बैरून मुल्क के नंबर से किए जाते हैं। मुल्जिम मुतादिद मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं बारिश का नया स्पेल 3 अगस्त से एंट्री देगा। मज़ीद हम जानेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। जी, जो मौजूदा स्पेल है, ऐसा कहना है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का सरदार सरफराज का कि वो शहर से निकल गया है। कराची में अब तेज़ बारिश का कहीं इम्कान नहीं है, लेकिन एक नया स्पेल तैयार है जो शहर में दाखिल होगा और वो 3 अगस्त को दाखिल होगा और 4 अगस्त को जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती है। और ये नया स्पेल जो दाखिल होगा 3 तारीख को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसेगा। ये 4 को और उसके साथ 7 तारीख तक जो है वो इसी तरह बरसात का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी रहेगा। मौजूदा जो स्पेल है इसमें आज सुबह जो बारिश हुई है वो सबसे ज़्यादा 13 मिलीमीटर DHA के अंदर रिपोर्ट की गई। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बारिश रिपोर्ट की गई थी। सुबह 6 बजे शुरू हुई और तकरीबन कई घंटे जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रही। लेकिन इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी रिपोर्ट ज़रूर की गई है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज़ बारिश का कोई स्पेल जो है वो निकल चुका है और इस तरह का कोई इम्कान नहीं है कि अब शहर में किसी मुकाम पर जो है तेज़ बारिश होगी। लेकिन बारिश के बाद की जो असरात है वो अब तक छोड़ कर गया है बारिश, और जो स्पेल था अब तो गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद शहर का जो निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह गया है। गली, चौराहे, मोहल्ले और मरकज़ी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और उन पर जमे हुए जो मच्छर हैं वो वबाई अमराज का बाइस बन रहे हैं, ऐसा कहना है अवामी हल्कों का। जबकि माहिरीन ने जो है वो पानी को खुश्क करने की हिदायत जारी की कि आबादियों के गली मोहल्लों से जो है वो पानी को खुश्क किया जाए और इसके साथ साथ बरकी हालात से जो है वो दूर रहा जाए ऐसे मौसम के अंदर। और जहाँ से मेन ट्रांसमिशन लाइंस जो बिजली की गुजर रही हैं उन मुमकिन तौर पर वहाँ से भी रैश को जो है वो दूर रखा जाए और गुजरगाहें जो है उन मकामात पर नहीं बनाया जाए। जबकि बारिश का जो दूसरा स्पेल मुमकिन तौर पर आने वाला है, जिस तरह जो गुज़िश्ता स्पेल जो गुजर गया है
اس کے اندر کلی کھولی تھی ضلع انتظامیہ کے دعووں کی اور ان کی کارکردگی کی. منہ چڑھاتا ہوا پانی جو ہے وہ اب بھی سڑکوں پر موجود ہے. ٹریفک کا نظام جس سے درہم برہم ہے اور سب سے زیادہ باعث پریشانی کا یہ کہ گلیوں کے اندر سے بھی جو ہے وہ گٹر ابل رہے ہیں اور پانی موجود ہے اور گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ نہ ہونا حادثات کا باعث بن رہے ہیں اور مساجد امام بارگاہوں تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے شہریوں کی اور اپنی عبادات کے اندر بھی جو ہے ان کا خلل پڑ رہا ہے. جبکہ شہری کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے ہی دعوے کیے جاتے ہیں ہر بار بارش ہونے سے پہلے کہ ندی اور نالوں کی برساتی نالوں کی صفائی جو ہے اسے ممکن بنا لیا گیا, لیکن اس کے فوری بعد جیسی بارش گزر جاتی ہے کئی گھنٹے بلکہ کئی دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد پانی جو ہے وہ سوکھنے کا یا نکلنے کا اس کی انتظام جو ہے نہیں کیا جاتا ہے. جی کئی دن گزر جاتے ہیں, سڑکوں پر پانی اسی طرح سے موجود رہتا ہے, نکاسی آپ کا کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. بہت شکریہ اشرف خان. بہت شکریہ جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بارش کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. پورٹ قاسم پر یونانی جہاز میں پاکستانی مزدور کے جاں بحق ہونے کا معاملہ. پورٹ قاسم اتھارٹی نے یونانی جہاز کو روک کر اسرار علی کے خاندان کو معاوضے کی رقم دلوا دی. ڈاک ورکر کی فیملی کو 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی. رقم P&I کلب کے ذریعے ادا کی گئی. مزید ہم جان لیں گے اشرف خان سے. اشرف بتائی گئی صورتحال کے حوالے سے. رقم ہوئی ہے پاکستانی پورٹ پہ, پورٹ قاسم پہ یونانی جہاز میں پاکستانی مزدور کے جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ ہے. ڈاک ورکر اسرار علی یونانی جہاز پر سیمنٹ کی بوریوں کی منتقلی کے دوران حادثے میں جاں بحق ہوا تھا. پورٹ قاسم اتھارٹی نے یونانی جہاز کو روک کر اسرار علی کے خاندان کو معاوضے کی رقم دلوائی ہے اور ملکی تاریخ میں پہلی بار حادثے میں جاں بحق ہونے والے ڈاک ورکر کی فیملی کو 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی ہے. رقم P&I کلب کے ذریعے ادا کی گئی ہے. جہاز کی انتظامیہ نے جو ہے قانونی جنگ سے بچنے کے لیے $40,000 کی رقم دینے پر آمدگی ظاہر کی تھی. رقم چیئرمین پورٹ قاسم ناصر شاہ نے اسرار علی کے ورثاء کے حوالے کیا. حادثے کا شکار اسرار علی کے 11 بچے ہیں, 7 بیٹے 4 بیٹیاں اور بیوہ ہے. سب کو الگ الگ چیک حوالے کیے گئے ہیں جو قانونی طریقے کے حساب سے. پورٹ قاسم اتھارٹی نے اسرار علی نے پورٹ قاسم پر ڈاک ورکر کے طور پر 38 سال کی نوکری کی ہے. جی اشرف خان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. پورٹ قاسم پر یونانی جہاز میں پاکستانی مزدور کے جاں بحق ہونے کا معاملہ. پورٹ قاسم اتھارٹی نے یونانی جہاز کو روک کر اسرار علی کے خاندان کو معاوضے کی رقم دلوا دی. ڈاک ورکر کی فیملی کو 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی. رقم P&I کلب کے ذریعے ادا کی گئی. اشرف خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ڈائریکٹوریٹ کی تمام نجی اسکولز کو 10% فری شپ پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن رفیہ جاوید کہتی ہیں کہ فری شپ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. آپ کو بتائیں ڈائریکٹوریٹ کی تمام نجی اسکولز کو 10% فری شپ پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن رفیہ جاوید کہتی ہیں کہ فری شپ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. فری شپ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن رفیہ جاوید نے کہا کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر نجی اسکولوں کا دورہ کر رہی ہے. تمام ادارے منظور شدہ فیس وصول کریں. رولز کی خلاف ورزی کرنے والے نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی. اسکولز 10% فری شپ پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے. رفیہ ملا نے یہ بھی بتایا. جی ہاں, انہوں نے بتایا کہ 155 اسکولز 10% فری شپ پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. رولز کی خلاف ورزی کرنے والے نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی. تمام ادارے منسوخ شدہ فیس وصول کریں. کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر نجی اسکولوں کا دورہ کر رہی ہیں. فری شپ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن رفیہ جاوید کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ڈائریکٹوریٹ کے تمام نجی اسکولز کو 10% فری شپ پر عمل درآمد کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن رفیہ جاوید کہتی ہیں کہ فری شپ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. بات کریں گے آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئمہ بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, دیکھیں ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولس نے جو ہے وہ 10% فری شپ پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں. ڈائریکٹوریٹ کی تمام نجی اسکولوں کو جو ہے وہ 10% فری شپ پر عمل درآمد کرانے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. فری شپ کے لیے جو ہے وہ کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں. ایڈیشنل ڈائریکٹر
इंस्टीट्यूशन, जबकि अब मल्ला का ये बताना है कि कमेटी रोजाना की बुनियाद पर जो है वो निजी स्कूल का दौरा कर रही है, तमाम इदारे जो है वो मनसूखशुदा फीस जो है वो वसूल करें। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी जाएगी और 155 स्कूल में जिन्होंने जो है वो 10% फी के पर अमल दरामद नहीं किया था, जिनमें से जो है वो चंद की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 32 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई। इदारे शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक जून 2024 में महंगाई की शरह 12.6% थी, जो जुलाई में घटकर 11.1% तक गिर गई। इदारे शुमारियात में महंगाई की शरह की रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई 24 में महंगाई की शरह 11.1% रही। जुलाई 2024 में महंगाई की शरह अक्टूबर 2021 की कम सतह पर आ गई। जून 2024 में महंगाई की शरह 12.6% थी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 23 के मुकाबले में जुलाई 24 में फूड इन्फ्लेशन में 1.5% इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से महंगाई की शरह कम रही। माहिरीन ने बजट इक़दामात की वजह से आने वाले महीनों में महंगाई की शरह बढ़ने के खदशे का इजहार किया है। बरसात ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। महमूदाबाद में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। इलाके की मरकजी शाहराह भी खस्ताहाली का शिकार है, जबकि सड़क के गड्ढों में पानी जमा हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे इस हवाले से। नुमान बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, शहर कराची में होने वाली बरसात ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। मुख्तलिफ इलाकों की जो सड़कें हैं वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं, जबकि बरसात का पानी सड़क पर होने की वजह से मुसाफिरों को, अहले इलाका को, रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके महमूदाबाद में, और ये महमूदाबाद की मरकज़ी शाहराह है जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त पानी से भरी हुई है। गड़े यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो गुजरने वाले मुसाफिर उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अक़ब में मेरे कैमरामैन जानजेब आपको दिखाएं तो ये इस वक्त सड़क की शाहराह के हाल है, जो कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, गड्ढों के अंदर पानी मौजूद है, और जिसके अंदर जो है वो गाड़ियां फंसने के बाद जो है वो जो है हादसात का भी शिकार हो रही हैं, जबकि शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, हमें बताइएगा बरसात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है महमूदाबाद में? यार, हमारी तो ज़िंदगी यहाँ पे गुजर गई है, बचपन से जवान हो गए, हमने इस रोड का यही हाल देखा है। पता नहीं कौन सा काम होता है, क्या काम होता है। आपके सामने पोजीशन है, बाइकें ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, फैमिली के साथ यहाँ से गुजर नहीं सकते, लेडीज़ के साथ गुजर नहीं सकते। इतना बजट जब आता है, सब चीज़ों का आता है, उसके बावजूद भी ये हाल है। हमारे टैक्सीज वगैरह कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ से बाला तर है सारी चीज़ें। ये भाई, आप क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब बरसात होती है? सर, ये तो मामूल बना हुआ है हमेशा का कि यहाँ पे होता है, मगर ये सड़क तो किसी के हक में आती नहीं, कोई इसके ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार ही नहीं, ना LSC2 महमूदाबाद, ना एडमिन सोसाइटी, इसका कोई वाली वारस ही नहीं, और इसमें हमेशा ही खड्डे रहते हैं और इसी तरह पानी जमा रहता है। आज तक किसी ने कोई परेशान हाल नहीं किया। ठीक है, कई तौर पर इस वक्त सूरत हाल काफ़ी जो है वो ख़राब है महमूदाबाद की मरकज़ी शाहराह की, और जिसके ऊपर जो मुसाफिर हैं, जो अहले इलाका है, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी ये कह रहे हैं कि मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से कोई इस सड़क को ओन करने को तैयार नहीं है, कोई इस पर जो है वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कई सालों से ये सड़क जो है वो तबाही के दहाने पर है, लेकिन कोई भी मुताल्लिका हुक्काम, कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा इस पर काम करने को तैयार नहीं है। जी, कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा इस पर काम करने को तैयार नहीं है। बरसों से इस सड़क का यही हाल है। बहुत शुक्रिया नुमान गुल। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी। मिनिमम वेजेस बोर्ड सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी। मिनिमम वेजेस बोर्ड सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद नूरियों से तफसीलात जानेंगे। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सनती, तजारती और दीगर निजी इदारों में मुलाजमत करने वाले मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर कर दिए, जिसका चेयरमैन मिनिमम वेजेस बोर्ड जुल्फ़िकार अली निज़ाम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेहनत कशों को
1 घंटे की उजरत जो है 178 रुपये अदा किए जाएंगे, जबकि रोजाना की बुनियाद पर उजरत जो है 1423 रुपये अदा किए जाएंगे, जबकि माहाना जो उनकी उजरत होगी वो माहाना 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ वेजिज एक्ट 2015 की शिक के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके इन तमाम निजी सनती तजारती इदारों को पाबंद कर दिया है। अब जो है किस्म की जो उजरत है वो जो सिंध हुकूमत ने मुकर्रर की अमल दरामद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आसाद नोरियो।